and welcome to Notice Tonight, the show that decodes the region. Sol Dodum, a young man from Seppa in Arunachal Pradesh, has become an overnight star and a sensation in the frontier state with his solo campaign demanding clean drinking water for the residents of Seppa, a district town in Arunachal Pradesh, which is his hometown. Dodum has accused some local public health engineering officials of indulging in corruption by failing to provide clean drinking water to the residents despite the government allocating sufficient funds, and has alleged that the district SP and the deputy commissioner have not been cooperating and turning a blind eye to his complaints. Dodum undertook a solo march from Seppa to Itanagar on April 15, traversed a distance of 225 kilometers and reached Itanagar yesterday, that is the 18th of April. He said he was surprised at the love and affection showered upon him by local people along the way and in the state capital, and hopes to see a prosperous Arunachal Pradesh. Dodum said Chief Minister Pema Khandu was running the state quite well, but a section of bureaucrats and vested interests are working against development of the state. Dodum has faith in Khandu and hopes he would get an invitation from the Chief Minister to air his grievances and seek redressal of the problems in Seppa. To discuss on the general issue of corruption and how to deal with the malaise and whether the Khandu government should actually listen to people like Sol Dodum and initiate corrective measures, I am joined from Itanagar by State BJP spokesman Nabam Vivek. From Pasighat, I am joined by Tobam Dai, General Secretary of the All Arunachal Pradesh Students Union. Also in Itanagar, I have Mr. Tame Gyadi, the Seppa Unit President of the National People's Party. And at the studios in Guwahati, I am joined by Moyur Bora, well-known writer and commentator. Well, before we go ahead with the discussion, let's listen in to the conversation I had with activist Sol Dodum earlier today. Sol Dodum जी, अभी आप कल अरुणाचल कैपिटल ईटानगर पहुंचे, आज तक आप कोई सरकार से कोई मैसेज मिला, कोई सरकार ने आपको कांटेक्ट किया है क्या अब तक? एक्चुअली सर अभी तक तो कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि हम अभी तक मेरा टीम है जो अभी तो सरकार को मेमोरेंडम सबमिट नहीं किया है। आज दिन को मेमोरेंडम सबमिट करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जब मेमोरेंडम सबमिट होगा तो सरकार की तरफ से भी रिस्पॉन्स देगा बोल के। जी, सोलो दोदम जी, कोई संगठन, दल संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन से आपको सपोर्ट मिला है क्या? नहीं, एक्चुअली हम पहले से हम क्लियर बोल रहे थे कि हम कोई संगठन से बोल के कोई नहीं आना चाहिए, और संगठन का हम कोई हिस्सा भी नहीं है और कोई पॉलिटिक्स का भी कोई हिस्सा नहीं है। हम उसी दिन से क्लियर कर दिया था कि अगर कोई पॉलिटिक्स होता है बोले तो हम छोड़ देगा, हम यही ग्राउंड में ही छोड़ देगा, और कोई संगठन ऐसा होता है तो हम छोड़ देगा। मेरा यही क्लियर था कि हम संगठन और पॉलिटिक्स और कोई ग्रुप को हम विश्वास नहीं करते हैं। सब एक एक लोग होना है, जो एक एक व्यक्ति जो सच्चाई का साथ देते हैं और सच्चाई को जो काम करता है वो आना चाहिए, वही मेरा मांग था सर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी से कितना उम्मीद रखते हैं, क्योंकि ये अभी सरकार अगर कोशिश करता है तो ये मामूली बात है। ये आप जो डिमांड कर रहे हैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सबका हक है, ये सबका राइट्स है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए आप जो प्रोसीड कर रहे हैं, ये इसमें करप्शन हो रहा है, ये तो सरकार के लिए एक सिंपल बात है। आप कितना उम्मीद करते हैं चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू से? मैं अपने मुख्यमंत्री जो राजकरण मुख्यमंत्री उसे मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि वो यंग नेता है, और मैं हमेशा बार बार बोलता हूं कि उसे सब सेपा के जितने पब्लिक, सेपा के जितने वासी है, वहाँ निवासी बैठने वाला, सब उम्मीद है कि वो एक अच्छा फैसला देगा ताकि सेपा को भी सपा पानी पिलाने के लिए। तो हम सर से बहुत उम्मीद है कि वो हमारा पब्लिक का, सेपा का, जनता का बात को ना नहीं करे, क्योंकि हम वहाँ से जब सेपा से निकाला था, हम अकेला सेपा का नाम से अकेला निकाला था, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते सारा इतना सारा भीड़ हो गया। तो सर हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री जो हमारा पब्लिक का बात को मानेगा बोल के, वही सर। आप इतना यंग एक्टिविस्ट है, अरुणाचल के लिए आपका क्या सपना है? सर हम कभी आज तक हम वही सपना, मेरा लिए तो अरुणाचल के लिए ऐसे बड़ा बड़ा तो कभी सपना नहीं है, लेकिन मेरा एक सपना है कि जो करप्शन करता है
कोई भी हो, चाहे ऑफिसर हो चाहे लीडर हो, करप्शन करते हैं उसका सामने नहीं झुकना चाहिए। सोल दोदुम जी, आपको अभी सारा जगह से और सारा अरुणाचल से आपको सपोर्ट मिल रहा है, सोशल मीडिया में सपोर्ट मिल रहा है, लोग आपका आगे पीछे अभी जमा हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में आपका तो क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, क्योंकि आपका राइवल्स भी है, आप जो करप्शन का खिलाफ आप लड़ रहे हैं उसमें आपका एनिमी भी होगा। वो उनका अगर जब कहेगा कि सोल दुडुम का अल्टीमेटली पॉलिटिकल मोटिव है, उसमें पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर सकता है बाद में जाकर के, तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए सर, रियली बता रहे हैं, हम पॉलिटिक्स कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये हमको पॉलिटिक्स अगर हमको फ्री देता है बोलने से भी हम नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम पॉलिटिक्स में आके क्या करना है, करप्शन तो करना है ना सर। हम पॉलिटिक्स तो बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट भी नहीं, अगर हम पॉलिटिक्स में करप्शन तो करना है, इससे अच्छा तो पॉलिटिक्स नहीं आके हम अगर समाज का सेवा कर सकता है तो जो अभी हम स्टेप उतार रहे हैं, हम ऐसा लग रहा है कि यही सही है। सोल दोदुम जी, आपने कल कहा कि आपका फैमिली ने भी बोला कि इसको छोड़ देना चाहिए, अपना आदमी है, तो अभी आपका सपोर्ट देख करके आपका फैमिली ने आपको क्या कहा? सर अभी तक बात ही नहीं किया सर, पता नहीं, ऐसा लगता है कि कॉल भी नहीं किया, बात भी नहीं किया, अभी तक फैमिली से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। हम फैमिली लोगों को भी हम बार बार माफ़ मांगा है, देखो मेरा कोई ऐसे इशू नहीं है, बस हम झुकना नहीं चाहते और हम करप्शन के सामने हार मानना नहीं चाहते। हम फैमिली को बार बार हम ये बात समझाने के लिए किया है कि अगर हम किसी करप्शन लोग के सामने में झुकेगा, करप्शन आगे में हम हार मान जाएगा, तो कल को आने वाला फ्यूचर मेरे लिए नहीं, मेरा बच्चा, आने वाला बच्चा या आने वाला भाई बहन लोग के लिए प्रॉब्लम हो। प्रधानमंत्री मोदी जी को आप क्या कहना चाहेंगे अरुणाचल से? सर मेरा आवाज़ वहाँ तक कहाँ पहुँचेगा, छोटा आदमी है सर, अगर आवाज़ तक पहुँचता है बोलने से मेरा तो यही बात है, आपका जो यहाँ पर जो सरकार चलाता है वो पेमा सर वो अच्छा चला रहा है, लेकिन कुछ ऑफिसर लोग ऐसा है कि पॉलिटिक्स ज़्यादा टच करता है। जो ऑफिसर लोग को वहाँ से इंस्ट्रक्शन देना है कि जो ऑफिसर होता है वो बिल्कुल पॉलिटिक्स में ना जाए, वो ऑफिस काम ही करे, और जो ऑफिसर होता है वो लीडर ना बने, कोई संगठन बना के मत बैठे, कोई एसोसिएशन बना के मत बैठे। उसके बाद हमारा राज्य जो हमारा राज्य में है वह बिल्कुल जो एजुकेशन सेक्टर, जो एजुकेशन होता है वो थोड़ा प्रॉब्लम है, वीक है। उसके बाद जो हेल्थ है वो थोड़ा वीक है, तो हम वही कहना चाहते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ जो जो मोदी सरकार जो देता है वो गवर्नमेंट यहाँ में हमारा स्टेट गवर्नमेंट चला रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन जो कुछ लोग होता है, कुछ जो वहाँ में अंदर में नौकरी कर रहा होता है, जो कोई ऑफिसर लोग होता है उसको सही ढंग से यूज़ नहीं करता। सोल दोदुम जी, नॉर्थ ईस्ट लाइव से बात करने के लिए आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग वंस अगेन टू नॉर्थ ईस्ट लाइव। थैंक यू, थैंक यू। ओके व्यूअर्स, आपने सुना, दैट वाज सोल डोडुम, द यंग एक्टिविस्ट फ्रॉम सेपा, जो ओवरनाइट सेंसेशन बन गया है, अरुणाचल प्रदेश में ओवरनाइट सेंसेशन बन गया है, स्टार स्टेटस उनका हो गया है। लॉट ऑफ पीपल आर कॉलिंग हिम अरुणाचल्स गांधी, बट लेकिन सोल डोडुम का कहना था कि हमको बड़ा आदमी के साथ तुलना मत कीजिए, बड़ा आदमी के साथ तुलना मत कीजिए, हम छोटा आदमी है। दैट इज व्हाट ही यूज्ड टू से। ही इज अपीलिंग to the people not to compare him with people like महात्मा गांधी। मैं सीधे चलता हूं नबम विवेक जी के पास। नबम विवेक जो कि बीजेपी, अरुणाचल प्रदेश बीजेपी के स्पोक्समैन है। नबम विवेक जी, नाउ यू हैव हर्ड, आपने सुना सोल डोडुम ने कहा कि उसका लड़ाई जो है वो पेमा खांडू जी या तो बीजेपी सरकार से नहीं है। वो कह रहा है कि पेमा खांडू जी अच्छा चला रहा है, लेकिन सर्टेन अमाउंट नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो करप्शन में इंडल्ज कर रहा है, करप्शन कर रहा है, लोगों का हित में काम नहीं कर रहा है। तो आपका क्या कहना है? थैंक यू वसबीर जी। भारतीय जनता पार्टी ये ऐसा एक पार्टी है जो करप्शन के अगेंस्ट में जीरो टॉलरेंट है। ये हमारा केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है हर मंच से, और हमारा प्रदेश का, अरुणाचल का मुख्यमंत्री, यंग एंड डायनामिक चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू, इन एवरी मीटिंग। Okay, we have lost the line to Mr. Nabam Vivek. Nabam Vivek जी के पास मैं आऊँगा। I am also coming, मैं तबम जी दाई जी के पास भी आऊँगा, लेकिन मैं चलता हूँ अभी टमे ग्यादी जी। टमे ग्यादी जी जो NPP सेपा यूनिट का प्रेसिडेंट है। तमे ग्यादी जी,
ये जो है सोल डोडुम, वो भी सेपा का रहने वाला है, आप भी सेपा का है, आप यू आर द एनपीपी प्रेसिडेंट। ये जो एलिगेशन साफ ड्रिंकिंग वाटर के खिलाफ, साफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है बोल के जो सोल डोडुम ने प्रोटेस्ट किया है, सोल डोडुम ने अवेयरनेस क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है, उसमें आपका क्या कहना है? थैंक यू एनी टीवी और जितना एनी टीवी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। इंक्रीज द वॉल्यूम। और आज ये जो सोल डोदम का जो केस लेके यहाँ में जो आपका ड्रिंकिंग वाटर गंदा है बोल के जो यहाँ में जो अभी इसका जो प्रॉब्लम जो चल रहा है, इसको लेके मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना। जैसे हमारा ये जो पब्लिक का जो आवाज़ था, सोल का आवाज़ जो है, तो बिल्कुल हमारा यहाँ सपा में सब आप देखा होगा, जितना भी मैंने लाइव टीवी में देखा है कि पानी तो बिल्कुल गंदा है। वो पानी जो गंदा है वहाँ में 3 तो WTP है, एक तो बहुत पुराना है वो जो 80s का होगा, उसके बाद एक तो 90s का होगा, अभी जो रेसन जो अभी जो चल रहा है ये जो आपका 2000 का है। तो ये मुद्दा को लेके तो हम अभी क्या बताएं, सपा में जो पानी का जो समस्या है वहाँ में कम से कम आपका 25,000 जनता रहता है और सब तो पानी पी रहा है, और किस तरीके का पानी पी रहा है वो जानता है उसके बारे में, और उसको लेके सोल डोडम ने आज आवाज़ उठाया है। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो सोल का जो आवाज़ है जनता का ही आवाज़ है, तो उसी को लेकर मेरा यही मानना है कि जो सोल ने जो आवाज़ उठाया उसको जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो परमिशन दिया था पीसफुल रैली के लिए, वो पीसफुल रैली को अच्छा से कंडक्ट करने देने के लिए, अच्छा से जनता आगे में वो चीज़ को प्रॉब्लम को ले जाके सॉल्व करने के लिए, तो परमिशन जब देता है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ में उसको लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए था। इसलिए वो जो जैसे वो निकाला है रैली, पीस रैली के लिए, और उसको जाकर जो मैंने आपका दुर्घटना हुआ उसको मैं निंदा करता हूँ, वो बिल्कुल गलत है और ऐसे नहीं करना चाहिए। और खासकर जो अभी जो हमारा PH डिपार्टमेंट का जो अथॉरिटी है, और वो सब भी टाइम में अच्छा से उसको देखभाल करता तो ऐसे समस्या भी नहीं आना होगा। तो इसको हम ज़्यादा नहीं कहकर यही मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब अभी यहाँ पे टीवी पे बैठ के जो बराबर भाषण मार के तो फ़ायदा नहीं होगा। अभी सोल डोदम और ये जो PH डिपार्टमेंट का जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसको तो मैं गवर्नमेंट में हमारा अरुणाचल सरकार से ये मांग करता है कि जल्द से जल्द इसको आप ये कर दे, ये आपका जो जी जो आपका वेरिफिकेशन जो होगा ठीक है, उसको बेस करना, उसको आप समस्या को जल्दी से जल्दी उसको ठीक करना अच्छा है, क्योंकि आप जनता का कंफ्यूजन ना रखे। जी, जल्द से जल्द ये समस्या को सुलझाना चाहिए। ये तामे ग्याडी जो सेपा यूनिट का एनपीपी प्रेसिडेंट है। आई एम कमिंग टू यू इन अ मिनट टोबम डाई। नबम विवेक जी, आपने सुना एनपीपी का सेपा यूनिट प्रेसिडेंट तबम ग्यादी जी ने भी कहा है जे सेपा में जो पानी 25,000 जो सेपा का लोग है वो गंदा पानी पी रहा है, पानी गंदा है। उसका मतलब ये हुआ ये सोल दोदुम जी ने जो मुद्दा उठाया है, सोल दोदुम जी ने जो इशू का लेकर के मार्च किया है, जो इशू का लेकर के प्रोटेस्ट कर रहा है, वो बिल्कुल सही है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या आप नहीं मानते हैं कि पेमा खांडू जी या तो उनका रिप्रेजेंटेटिव जल्द से जल्द सोल दोदुम के साथ एक मीटिंग करके उसका प्रॉब्लम समझना चाहिए? वसबीर जी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी करप्शन के अगेंस्ट में जीरो टॉलरेंट है, ये चाहे केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में हो, ये पहला बात है। और दूसरा जो आपका सवाल है, ये प्योर ड्रिंकिंग वाटर, जो साफ़ सुथरा पीने लायक का पानी हर जनता को सुविधा देना, ये सरकार का दायित्व है। इसलिए हमारा भारत सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन भी चलाया जा रहा है। तो साफ़ पानी सबको मिलना है, ये गवर्नमेंट का स्टैंडिंग पॉलिसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए, और जहाँ तक ये सोल डोदुम का सवाल रहा, इनका सही तौर पे अभी तक आधिकारिक तौर पे हमारे सरकार को कोई सूचना या मेमोरेंडम अभी तक सबमिट नहीं किया है। अगर सबमिट किया है तो मैं समझता हूँ ये जो द पेमा खांडू लेड गवर्नमेंट इज़ वेरी मच प्रोएक्टिव and he is a dynamic chief minister, right? लेकिन and नबम very विवेक जी, zero tolerance against corruption. नबम विवेक जी,
अभी ये सोल दोदुम Yes, जी ने yes. सोल दोदुम ने अप्रैल 15 तारीख को मार्च शुरू किया सेपा से ईटानगर पहुंचते हुए उनका 24 घंटा हो गया है। वो कह रहा है मीडिया में, हमारा चैनल में भी कह रहा है कि वो एक मेमोरेंडम देना चाहता है। वो पेमा खांडू जी या उनका रिप्रेजेंटेटिव से मिल करके उनका प्रॉब्लम उनका आगे में रखना चाहता है। तो आपका सरकार ने क्यों उनका साथ अभी तक मीटिंग नहीं किया है? नहीं, जैसे वो ईटानगर पहुंचा है, देन द कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन हैज गिवन फुल सिक्योरिटी एंड he has been given permission to have a sit-in dharna at tennis court area, and it is the duty of the protester to make a proper memorandum. और उसी प्रकार गवर्नमेंट को सबमिट किया। वो मैंने सुना है, आप सोल जी से बात किया तो सोल दोदुम जी ने भी कहा है कि मैं अभी तक मेमोरेंडम दिया नहीं है, तो जब भी देंगे सरकार का जो द्वार है हर जनता के लिए खुला है। जनता का जो सही डिमांड होगा, द जेन्युइन डिमांड्स ऑफ द पब्लिक विल बी ऑलवेज एड्रेस्ड बाय द पेमा खांडू led BJP government. Okay, that is encouraging. Let me It is turn to absolute fact. Mr. And the government is absolutely against corruption. Absolutely. I'll come back to you. मैं दोबारा आपका पास वापस आऊंगा नबम विवेक जी. Let me go to Mr. Tabam Dai. Tabam Dai जी जो कि ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी है, पासीघाट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी। तबम दाई जी, आपका क्या कहना है ये सारा विषय के ऊपर? ओवरनाइट ये सोल दोदम जो है वो कोई दल संगठन का रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये एक ऑर्डिनरी एक्टिविस्ट है, एक सिटीजन है। वो सोलो मार्च किया, अकेला शुरू कर दिया था मार्च अप्रैल 15 को। आते आते लॉट ऑफ पब्लिक सपोर्ट उनको मिल रहा है, फिजिकली भी मिल रहा है, सोशल मीडिया में भी मिल रहा है। इसका आपका क्या कहना है? सबसे पहले वसबीर जी, रेस्पेक्ट एंड ग्रेट सैल्यूटेशन टू सोल डोडुम कि उन्होंने हमारे राज्य में एक ऐसा प्रक्रिया, एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन, एक ऐसा पब्लिक का जो तकलीफ है वो इशू को उतारने के लिए उन्होंने जो कदम उठाया है, जिस प्रकार का उसने एक डेमोन्स्ट्रेशन का जो एक नज़ारा दिखाया है हम लोगों को, या हम लोगों के लिए एक वो है एक हम लोगों के लिए एक it's a kind of lesson for us, it's a kind of an eye-opening lesson for us, and I think it's phenomenal and it's एक ऐतिहासिक उसने एक मार्च किया है सेप्पा से लेकर ईटानगर तक। और जैसा आपने कहा है, yes become an sensation, yes it's because what I see, मैं पर्सनली तो उसे मिला नहीं हूँ, लेकिन जो ऑनेस्टी और जो सिंसियरिटी उनके आंखों में झलकता है और जिस प्रकार से उन्होंने ये जो मुद्दा को उठाया है, तो मैं तो यही भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि उन्हें हमेशा शक्ति दे और अपना जो इश्यूज है उससे बतक नहीं जाना है। और मैं अपना निजी तरफ से मैं जो आगे बोला हूँ, हम सैल्यूट करता है। और मैं आपका जो चैनल है इसका माध्यम से भी मैं राज्य सरकार को ये गुहार लगाता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार का जो नॉन वायलेंस जो डेमोन्स्ट्रेशन है, जो नॉन वायलेंस जिस प्रकार से वो उन्होंने पानी का जो इश्यूज को, क्लीन वाटर जो पीने का जो पानी का जो पीने का जो क्लीन वाटर का जो इशू को उन्होंने उजागर किया है, उसका ऊपर में आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट शुड बी सेंसिटिव एंड immediately the honorable chief minister of the state or whoever the concerned authorities should give an audience to our energetic, young, energetic and dynamic जो अभी जो हमारा सोल दोदुम है, उनको जल्दी से जल्दी ऑडियंस देना है और ये इशू को जल्दी से जल्दी, ये मसला को जल्दी से जल्दी सुलझाना है, ऐसा हमारा मानना है। Absolutely, very well said, extremely well said. आपने बहुत ही अच्छा बोला तबम दाई जी। I'm coming back to all the panelists in Arunachal Pradesh. Let me turn to my panelist on the studio, Mayur Bora, very well known and respected commentator. Mayur Bora, you know, this gentleman, Sol Dodum, he is launching a solo campaign, and what is his demand?
His demand is pure drinking water, clean drinking water for the 25,000 people of Seppa. And he is making it very clear that he has no interest in politics. It is not a protest or revolt against the Pema Khandu government, but he wants to raise an issue. Now, my question is, why is the state government taking so much time to address the issue? He could have been met along the way as he was marching from Seppa to Arunachal Pradesh, or capital Itanagar, and taken the memorandum from him. Absolutely, Wasbir. First of all, I salute the indomitable spirit of Sol Dodum. I think we should congratulate and commend him, the initiative taken by him, as well as the initiative played by the media as well as social media. Only because of social media and role played by media, I think many people have come to know about this. See, the answer to your question lies in the words of Mr. Nabam Bibek, who spoke some time back. Two issues I was slightly amused. He was telling that first of all, we do not have Susna nahi hai, we do not have information. When the whole world is talking about, the journey of this empowered citizen of Seppa, Sol Dodum, and he's very, very focused and all, he's asking for clean drinking water, and he's also highlighting and amplifying the mid-level corruption, having full trust in the Chief Minister Pema Khandu government, and also making it very clear that I don't have any political ambition. In spite of that, when the BJP leader says that we do not have Susna or information about that, I think it is very, very surprising. Secondly, he was also telling some time back that he should prepare a proper memorandum. Now I am amused because what is a proper memorandum? Is he hinting at the proper English, proper grammatical tones and tenors and all other things? A memorandum of a citizen who has been reeling under different problems due to apathy and indifference shown by the mid-level public health engineers, or maybe from the Deputy Commissioner and SP also, he is not getting the due attention as he should have got. That's why he is forced to come to this march. But I am surprised if this is the attitude displayed by the ruling party, then I think that is why he has not been met by Chief Minister. Okay, he is in Guwahati, but other representatives also probably have not met him. I think this mindset displayed by Mr. Tomom Bibekji, respectfully, I would like to say, this has to change. Let me take a reaction. Let me take a reaction directly from Nabam Bibek. Mr. Nabam Bibek, आपको क्या कहना है? Okay, Nabam Bibek, we will come to you. But I have a breaking story. I have a breaking news at this point in time. I have a big breaking story from Arunachal Pradesh at this time. We have just heard, our sources are telling us that Chief Minister Pema Khandu is likely to meet Sol Dodum. We don't know when, but Chief Minister Pema Khandu is likely to meet Sol Dodum. That is the big breaking story at this point in time. And by the way, Chief Minister Pema Khandu tonight is in Guwahati. He is at a hotel in Guwahati. He will be having his first meeting on Assam-Arunachal border dispute with Chief Minister Himanta Biswa Sharma at 11 o'clock in the morning tomorrow. So Pema Khandu is in Guwahati tonight. He is meeting the Assam counterpart, Dr. Himanta Biswa Sharma, to discuss the resolution of the border dispute tomorrow. But breaking story is that Arunachal Chief Minister Pema Khandu is likely to meet Sol Dodum. And sources are also telling us that the Arunachal Chief Minister is aware of the issues raised by Sol Dodum. So that is the news we are getting. Now, do we have Nabam Bibek with us? Okay, Nabam Bibek, line is disrupted. We will go to him shortly. But Tame Gyadi ji, ये आपका क्या कहना है? एनपीपी ये बीजेपी का अलायंस पार्टनर है, तो एनपीपी से भी आपका क्या सुझाव देंगे कि इतना देर क्यों लग रहा है? अभी आपने सुना, सूत्र का कहना है कि अरुणाचल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी इज लाइकली टू मीट सोल दोदुम. ये तो कोई बड़ा बात नहीं है, ये सिंपल बात है. मीट करके उनका इशू जो है वो मीडिया में साफ है. ये 1 सप्ताह से मार्च कर रहा है, तो इसको तुरंत हल कर सकता है. मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि मैंने गवर्नमेंट जो है इसको जितना जल्दी कर सके उसको जितना ही जल्दी हो सके कर देना चाहिए था. आप देखिए, उसमें हम गवर्नमेंट से यही हमारा मांग था कि पहले से अगर सोल डोडम जैसे काल पहुंचा है तो उसका आवाज़ जैसे यहाँ बुलंद हुआ, तब जाके गवर्नमेंट जो है इसको इमीडिएट इनिशिएटिव लेना चाहिए था. क्योंकि
तब ये जो अभी आपका जो पानी का जो समस्या जो लेके जो सोल दोदम आया है, उसको तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, आपको सरकारी उसको डिसीजन देना पड़ेगा, दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि इसमें गलत किसका है? डिपार्टमेंट का गलत है ना सोल दोदम का गलत है? कौन है इसमें सही, कौन है गलत? देखने के लिए तो अभी गवर्नमेंट ही इसको कुछ करना पड़ेगा। और हम एनपी जो है आपका एनपीपी, हम बिल्कुल ये आपका बीजेपी के साथ में अलायंस है, और हम यहाँ स्टेट में हम अभी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी में भी है। तो हम तो जहाँ में करप्शन है उसको तो हम मानता नहीं, जैसे बीजेपी का जो रूल है वो हम भी ये लेके बैठा है। तो इसी तरह से जहाँ करप्शन है वहाँ तो हम मानेगा नहीं, जो जनता का आवाज होगा उसी में हम रहेगा। टामेक जी, सेपा का सिचुएशन का बारे में थोड़ा बताए। उसका मतलब ये है कि सोल दोदुम जी ने जो ड्रिंकिंग वाटर का बारे में बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। उनका और एक इशू है, उनका इशू कि खराब रास्ता, बैड रोड्स, ये भी इशू मुद्दा ये उठा रहा है। तो आप लोकल लीडर है सेपा की, आपका क्या कहना है? देखिए, वो सेपा का जो ड्रिंकिंग वाटर के बारे में हम पहले भी कह दिया है, जो सोल दोदुम ने जो आवाज़ उठाया वो जनता का आवाज़ था। पानी बिल्कुल गंदा है, वो तो सब जानता है, वो कोई नहीं छुपने वाला बात है। तो इसमें ऐसा है कि मैंने रास्ता में जो अभी जो प्रॉब्लम है, जहाँ से मैंने पाइपलाइन बिछाया गया है, जो आपका सीसी पाइपलाइन जो जितना मैंने ढलाई किया गया है, उसको उखाड़ के जो पाइप बिछाया गया है, उसको इन टाइम में वो लोग फिलिंग नहीं किया है, उसके लिए थोड़ा रास्ता इधर उधर हुआ है। तो उस दिन रिसेंटली जैसे ये समस्या जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ है, तो साथ ही साथ उस दिन जो फिलिंग कर दिया वो लोग। तो इसका ये डिपार्टमेंट का कहना है कि मैंने हम बारिश भी आ रहा था, उस कारण से हम उसको फिलिंग नहीं कर पाया। तो अभी देखा है तो कुछ पोर्शन जो है फिलिंग भी कर दिया और मरम्मत करके जा रहा है। तो इसमें इतना तक तो अभी मैंने रास्ता में इतना खास प्रॉब्लम नहीं है। तो पानी का समस्या जो अभी पानी जो WTP जो अभी जो न्यू लाइन जो पाइप जो बिछाया है वो अभी इनको ऑन गोइंग में कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसलिए मेरा ये कहना था कि मैंने आपको वो पानी को हम जी। हर घर तक पहुंचने में थोड़ा टाइम टेकन हो सकता है, लेकिन इसमें कितना सच्चाई है तो कितना गलत है। जी अच्छा, और जूता को लेके तो एब्सोल्युटली मैं आई एम कमिंग टू यू टोबम डाई जी, आई एम कमिंग टू यू इन अ मिनट। नवाब विवेक जी, आपका लाइन कट गया था। हमारा एक जो यहाँ जो कमेंटेटर है मयूर बड़ा जी का कहना था कि आप जो कमेंट किया था कि आपको सूचना नहीं है, यू डोंट हैव इंफॉर्मेशन। तो ये जो इतना सोशल मीडिया में चल रहा है, इतना मीडिया में उनका कहना है, मयूर बड़ा जी कहना है सूचना कैसे नहीं होगा, आपने इतना टाइम क्यों लगा रहा है, ये उनका कहना है। आपको क्या कहेंगे? Wasbir ji, with due respect to Mayur Bora ji, what I meant was a responsible government cannot react to the social media because Facebook में आजकल ये WhatsApp में बहुत सारा उल्टा पुल्टा मैसेज चलता है, आप सभी को पता है। लेकिन तो Facebook और सोशल मीडिया पे इतना जल्दी रिएक्ट, we have to react, I agree, but not that fast, we have to verify. देखना पड़ेगा कि रियलिटी क्या है। कोई एलिगेशन कर दिया, कोई कुछ डिमांड कर दिया तो गवर्नमेंट फटक से रिएक्ट करेगा, ये नहीं हो सकता है। बट एज यू हैव सेड द ब्रेकिंग न्यूज, आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज एब्रिस्ड विद द सिचुएशन एंड डेफिनेटली एज आई सेड, हमारा जो सरकार है, पेमा खांडू जी का जो सरकार है, भाजपा सरकार, एक नंबर मैं फिर से बता रहा हूँ कि करप्शन का अगेंस्ट है। और मयूर बोरा जी, सोशल मीडिया पे कोई भी जिम्मेदारी सरकार इतना जल्दी रिएक्ट नहीं कर सकता है, हमको ग्राउंड रियलिटी स्टडी करके रिएक्ट करना पड़ता है। दैट इज व्हाट आई मेंट, बट आई नेवर अंडरमाइन एनीबॉडीज डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट। हमारा सरकार डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को भी रेस्पेक्ट। I just have a limited point. I am not saying that it was not a post in social media. When there is a post, I agree with you. Some of the posts we should not take it very seriously. But when you know that somebody has marched for 225 kilometers and that too asking for a right of a citizen, then I think government should be prompt. That's what I am telling. And when you talk about social media is used by Honorable Prime Minister, the President of United States, now everyone. But we must know how to separate the grain from the chaff. I think government should know that. That's my limited point. Exactly. That is what I am saying. Because Mr. Sol Dodum, we have to, because he could have faxed his points of demand with the district authorities, the deputy commissioner or any engineer. His complaint, विवेक जी, उनका तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ फेथ नहीं है, उनका आपका मुख्यमंत्री के ऊपर फेथ है।
आपका मुख्यमंत्री का ऊपर विश्वास है, लेकिन उनका डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज का ऊपर कोई भी फेथ नहीं है। इसको आपको समझना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। यस बसवीर जी, इसलिए मैंने बोला कि ही कुड हैव फैक्ट्स भी भेज सकता था वहाँ से, देन ही कुड हैव फॉलोड अप द गवर्नमेंट। एनीवे व्हाटएवर इट इज, लेट अस नॉट डिस्प्यूट ऑन द थिंग्स एंड बट करप्शन के अगेंस्ट में कोई भी मुद्दा उठाएगा और ये प्योर ड्रिंकिंग वाटर के बारे में सब मैंने पहले भी कहा है, ये सरकार का मिशन है और ये सभी का हक है। इस पे जरूर हमारा सरकार, राज्य सरकार स्ट्रिक्टली काम करेंगे और इसमें अगर कोई करप्शन है तो उसमें तो सवाल ही नहीं उठता है, जीरो टॉलरेंस चलेगा। और ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टाउन में जरूर मिलेगा। Let me quickly go to Mr. Tabom Dai. Mr. Tabom Dai, you know, इस जो रास्ता दिखाया है, आपने कहा था कि सोल दोदुम ने एक रास्ता दिखाया है, एक इंस्पिरेशन क्रिएट किया है, एक आंदोलन के तरह, एक डेमोक्रेटिक पीसफुल नॉन वायलेंट आंदोलन का एक रास्ता दिखाया है अरुणाचल प्रदेश में। तो उसमें से आपका क्या लेसन लर्न हुआ है? क्योंकि करप्शन जो है ये बड़ा मुद्दा है, सिर्फ अरुणाचल में ही नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जो अंडर डेवलपमेंट है, अभी भी जगह है। विजयनगर मान लीजिए, अभी भी उस दिन कई दिन पहले मुख्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर गया, कितना मुश्किल से विजयनगर पहुंचा। वी आर आफ्टर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस, देयर इज स्टिल प्लेसेस वेयर व्हिच हैज टू बी एयर ड्रॉप्ड। ये सब क्यों हो रहा है? देखो अंडर डेवलप का अरुणाचल प्रदेश का और जो करप्शन है, मैं पहले भी एक आपका यही चैनल में शो में कहा हूं, बिकॉज इट्स एक ऐसा एक सिस्टम में है, एक सिस्टमाइज्ड हो गया, इट्स काइंड ऑफ ए कैंसर। और ये सिर्फ यू कैन नॉट ब्लेम ओनली द पॉलिटिशियंस और द ऑफिसर्स, इट इज एन विशियस सर्कल। ये एक ऐसा बीमारी हो गया है। फिर भी अभी जो हम लोग देख रहा है बदलते समय में जो करप्शन है और जो अवेयरनेस है, जिस प्रकार से अभी हम लोग देख रहा है, सोल दोदुम जी ने जिस प्रकार से अपना प्रोटेस्ट को लेके उभारा है, और जो हमारा जो कॉन्शियंस है, कलेक्टिव जो पब्लिक कॉन्शियंस को उन्होंने जो एक नॉक किया है, तो आई थिंक विद चेंजिंग टाइम, विद टाइम हम लोग सब लोग सक्रिय रहेगा जो करप्शन को लेकर फाइट करने में और अवेयरनेस करने में। और मैं आगे भी कहा हूँ, जो सोल दोदुम का जो संकल्प है वो, और जिस प्रकार से उन्होंने एक जो डेमोन्स्ट्रेशन, जो एक प्रोटेस्ट उन्होंने जो यहाँ कायम किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारे प्रदेश के लिए, हमारे राज्य के लिए और हम जैसे लोगों के लिए जो एक्टिविज्म में है, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। और मैं यही कहूँगा कि जो हमारा जो गवर्नमेंट है, इट शुड बी रेसिप्रोकेटिव और सेंसिटिव रहना है। जब इतना जैसे मैं सुन रहा हूँ अदर जो पैनलिस्ट लोग कह रहा है, व्हेन समवन हैज मार्च 235 किलोमीटर ऑन फुट ऑन वो भी एक ऐसा जो कॉमन इशू है, क्लीन वाटर ड्रिंकिंग के लिए, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर के लिए। तो गवर्नमेंट हैव टू लुक इनटू इट एंड इट्स गुड दैट आप जिस प्रकार से आपने बोला कि न्यूज़ आर कमिंग दैट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विल बी मीटिंग सोल दोदुम इन ए शॉर्ट वाइल। तो एक अच्छा एक वो है, उसको वो करके सुलझाना है। और ये सिर्फ इट इज नॉट आइसोलेटेड इशू ऑफ सेपा ओनली, ये सब जैसे आपने कहा है, ये सारा मोस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश में बहुत सा जगह में पीने का जो बेसिक जो साधन है वो नहीं है। Absolutely. Huge support pouring in for Sol Dodum even during this show. Hundreds of people are watching the program on our Facebook live streaming, and I'll be reading out some of the comments shortly. But before that, I will go on a very, very short break. Don't go away. I'll be right back after just exactly 1 minute. Okay, welcome back. We are debating on the sensation
created by Sol Dodum, a young activist from Seppa, who is an overnight hero, not just in Arunachal Pradesh, but this story is trending. This story is a trending story now. Here's a young man on a march. He has undertaken a march on foot, trekked 225 kilometers in the hilly terrain like Arunachal Pradesh, in the high Himalayas, and he has actually undertaken this trip. Why? Just to draw attention to the fact that the people of Seppa, the 25,000 residents of Seppa, should be given pure drinking water, clean drinking water. Is it such a big thing that the people have to agitate to get pure drinking water? Is it something that he has to file a memorandum? Is the government waiting? Government is not believing in social media. But now that he is physically present in Itanagar, which is the capital of Arunachal Pradesh, for 24 hours, Nabang Vivek ji, 24 घंटा हो गया है. He is in Itanagar, guarded, provided protection by the Itanagar Capital Police. Why can't a district magistrate? Why can't a local BJP leader? Why can't a minister of state? Why can't an SP come and meet him and ask him what is his problem? ऐसा है, ये प्योर ड्रिंकिंग वाटर का जो इशू है, सेपा में ऑलरेडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, नया वाटर जितना सेपा टाउनशिप के लिए पानी का सुविधा के लिए काम चल रहा है. कम से कम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. द वर्क इज़ ऑन गोइंग, जैसे मैंने पता किया है. और इनका जो और भी इशू था कि इनको रास्ता का खुदाई कर दिया, तो जो पाइप का जो लेइंग होता है पीएचई में, जो वाटर सप्लाई के लिए बड़े बड़े शहर में भी होते हैं, ऑब्वियसली ये रोड साइड को ट्रेंचिंग करके ही लेइंग किया जाता है. तो ये सारा एक प्रोसेस समय लगता है, और ट्रेंचिंग का नेटवर्क को ख़त्म करके तब रोड को कहीं वाटर लीकेज ना हो, क्या ना हो, सारा पाइप का फिटिंग करने के बाद में वो ट्रेंच को बंद करके देन द प्रॉपर रोड कंडीशन आता है. तो सोल दोदुम जी का कंसर्न प्योर ड्रिंकिंग वाटर का, उसको मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट द गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी ऑन द जॉब टू प्रोवाइड प्योर ड्रिंकिंग वाटर टू होल सेपा टाउनशिप. दिस माइट बी एन आइसोलेटेड केस, बट देन इसमें मतलब इतना मैंने सीरियस इशू नहीं देखा है, क्योंकि ऑलरेडी काम चल रहा है पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से. और अभी जैसे आपने बोला है कि हमारा जो सरकार है, मैं बता रहा हूँ बार बार, सरकार ज़रूर उनका जो सही जो कुछ भी डिमांड है उसको, क्योंकि सरकार को क्या होता है कि एक लिखित रूप में मिला जाए तो सही रहता है. अच्छा, what about the local MLA? Honorable Chief Minister Pema Khandu is a phone call away. Nabam Vivek ji, तो अटेंड किया जाएगा जरूर. Yeah, Nabam Vivek ji, we will attend the demands of right. Mr. Sol Dodum. It is not disputed. I have taken your point. सोशल मीडिया में अभी ये सो जब चल रहा है, तो हमारे इसमें लॉट ऑफ पीपल आर कमेंटिंग कि लोकल एमएलए क्यों लोकल एमएलए का भी तो दायित्व है, वेदर थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग वेल, क्या करप्शन हो रहा है, क्या अगर एक लोकल आदमी अगर एक करप्शन का चार्ज लेवल करता है तो लोकल एमएलए का भी दायित्व बनता है. नो, द लोकल एमएलए ऑफ सेप्पा टाउनशिप और द ईस्ट कामेंग, जो हमारा पार्टी का विधायक गण है, दे ऑल आर वर्किंग ऑन. लेकिन वसबीर जी, ऐसा है किसी एक इंडिविजुअल का एलिगेशन को वी कैन नॉट टेक इट दैट इट इज़ प्रूवन कि करप्शन चार्जेस तो हमारे यहाँ लोग काफ़ी किसी को लगा देते हैं, लेकिन जो सरकार होता है, जो विधायक होता है, या तो जो रेस्पॉन्सिबल पद में है, आप अप्रिशिएट करेंगे, हमारे जनता अप्रिशिएट करेंगे कि जो रेस्पॉन्सिबल पद में है, हम किसी का भी कोई भी इंसान एलिगेशन लगा सकता है, लेकिन जब तक एलिगेशन प्रूव नहीं होता है उन पे एक्शन नहीं किया जा सकता. इसमें तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा जो भाजपा सरकार है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसमें हम लोग वी आर एब्रेस्ड विद द सिचुएशन. सो आर यू, माय क्वेश्चन अच्छा ही सॉल्यूशन निकलेगा, एंडिंग जो होगा अच्छा सॉल्यूशन. वसबीर जी, वन मोर पॉइंट, हमारा जो भाजपा सरकार है लेड बाय पेमा खांडू जी, रेदर विल अप्रिशिएट कि मिस्टर सोल दोदुम या कोई भी इंसान करप्शन को फाइट करने के लिए सहायता करेगा तो गवर्नमेंट अप्रिशिएट करेगा उसको. कोई भी करप्शन को अगर उजागर करता है वेरी गुड पॉइंट, वेरी वेल सेड, then the government will appreciate, because this government has the Pema Khandu led government has yes, like put behind the bars many HODs. This is the first time Nabam Vivek ji, in the state. I have no dispute with what you are saying. Absolutely, you have said the right thing. It's well taken. But can you assure
can you assure our viewers, can you assure the people of Arunachal Pradesh that the BJP government in Arunachal Pradesh will launch an investigation to prove whether the charges leveled by Sol Dodum are correct or not? The government will take an appropriate decision as and when we receive a proper, what I mean, once again I am saying a proper memorandum or a point of his allegations, with in fact with facts and figures if he is having. If not, he can plainly write these are the allegations, so the Honorable Chief Minister or the government may take action. Definitely government will put in the machineries. If necessary, there will be an inquiry committee as per the process of the government. Then if anybody is found guilty, once again I am repeatedly telling this government, the Pema Khandu government is zero tolerance on the corruption. अगर किसी भी ऑफिसर को या कोई भी सरकारी का जो कार्यकर्ता काम करने वाला करप्शन में पाया जाता है, चाहे 1 रुपया का हो चाहे करोड़ रुपया का हो, उसको सजा दिया जाएगा और ये सरकार ने काफ़ी सजा दे भी चुका है. I think I would like to respond to what Nabam Vivekji is telling, that there is a saying in English that proof of the pudding is in the eating. What he is telling is point well taken, it's very good. But when we will see the result? Okay, because you are telling, first of all, in your initial comments, just some time back, couple of minutes back, you said that it's not a very serious issue. Secondly, you said that it's a very isolated issue. But after seeing the comments of all the people of Arunachal Pradesh, Seppa is not an isolated case. Maybe in other places also. Wasbir was giving the example of Vijayanagar, how, of course, the geographical terrain is different. But when you go to Arunachal, I have been to different places of Arunachal, even now, don't get me wrong, even now there are certain issues I think which need prompt action from the government, as you are highlighting the dynamic nature of the Chief Minister and all. Secondly, I think when whole world, the Arunachal Pradesh people, majority of them are supporting him, what is the problem of the local MLA to come and express his solidarity with this particular movement? I am not saying that whatever Sol Dodum stands for, you support, but this particular journey of Sol Dodum, don't take it as a personalized journey. It's a journey of an empowered citizen to underline, to amplify, to flag certain real issues which are being faced by common people all throughout the country and mostly in Arunachal Pradesh. That's what my point was. Right. I will once again come back to... Yeah. Wasbir, can I? Please. Yes. Wasbir, can I? Go ahead, quickly. Go ahead. No, the point is that once again I am consistent with my comment that the BJP, Bharatiya Janata Party government is zero tolerance on corruption, whosoever it may be. I am consistent with that. If any person is bringing out a corruption charge against anyone, but that has to be proven in a very legal way. Absolutely, it shouldn't be that has to be one-sided. proven. So, by just seeing any media hype, and all, the government cannot react. It will be childish. Understood. So that I am not demeaning the movement of Mr. Sol Dodum, but I am telling the responsibility of a government. Let me absolutely point taken, Nabam Vivekji. Let me turn to Mr. Tobom Dai. I'm coming to you, Mr. Gyadi, I'm coming to you in a minute. Mr. Tobom Dai, now, do you think, आप क्या ये मानते हैं कि ये एक इशू, this Sol Dodum has raised this one issue of a local issue in Seppa? Would you admit today, would you agree that there could be innumerable different types of issues all across Arunachal Pradesh that need to be addressed by the government? I am not concerned whether it is the BJP government or whether earlier it was the Congress government, previously it was the Arunachal People's Party and so on, People's Party of Arunachal and so on, but that is not the point. Point is, do you think, आप कहेंगे कि अरुणाचल में और भी कई इशू है जो गवर्नमेंट का अर्जेंट अटेंशन जरूरी है? देखिए वज़ीर जी, इश्यूज तो अरुणाचल में अगर कहेंगे तो बहुत काफी है और हमारे जो संगठन है आपसू का भी बहुत से इश्यूज है गवर्नमेंट को लेकर, लेकिन जो ये अभी सोल डोडुम का जो इस पर हम लोग जो बात चल रहा है, जो बहस, जो हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, ये एक ऐसा क्योंकि ये एक ऐसा बेसिक वो है राइट्स है लोगों का, एक कॉमन सिटीजन का कि आपको क्लीन वाटर मिलना चाहिए और अगर उसमें इफ द गवर्नमेंट और द डिपार्टमेंट कैन नॉट प्रोवाइड तो ये एक वो है एक
दुर्भाग्यपूर्ण एक बात है। और जो अगर हम अरुणाचल प्रदेश का इशूज जो अगर गवर्नमेंट कहेगा तो उसमें आप देखिए, आपने जैसे पहले कहा है, अभी ही सालों बाद अभी विजयनगर में रास्ता पहुंच रहा है, और उसी प्रकार से ऐसा भी हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे अभी तक रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं पहुंच रहा है। इलेक्ट्रिसिटी और ये जो हमारे जो मोबाइल जो नेटवर्क है और जो हम जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, ये एकदम ये एक सपना जैसा है अभी भी यहाँ में। तो समस्या तो बहुत है। एंड देन अभी आपने जैसे कहा, हमारे जो मुख्यमंत्री है अभी गुवाहाटी में है, एंड देन बाउंड्री इश्यूज तो भी जो टॉक से स्टार्ट होने जा रहा है वो भी एक बहुत बड़ा इश्यूज है। एंड देन जैसा हमारे यहाँ जो रिफ्यूजी इश्यूज है वो भी इश्यूज है, एंड सो मेनी इश्यूज एजुकेशन का लेके, रोड का लेके, एजुकेशन। तबम दाई जी, रिसेंटली आई थिंक लास्ट ईयर अपसू ने आप जगह जगह जाकर के इस कंडीशन ऑफ द स्कूल्स इन अरुणाचल प्रदेश आपने इन्वेस्टिगेशन किया, आपका डेलीगेशन गया, जगह जगह में गया, स्कूल को दिखाया, सरकार के सामने एक्चुअल सिचुएशन लाया। तो एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत डेवलपमेंट का अभी जरूरी है। हाँ, क्यों नहीं, अभी भी अरुणाचल में तो ऐसा खासकर एजुकेशन तो बहुत है, लेकिन हम लोग गवर्नमेंट को भी, क्योंकि ये सब चीजें एक दो दिन में तो नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। तो हम लोग भी पेशेंटली हम लोग भी समझ देता है कि समय लगेगा, लेकिन हम लोगों ने लोगों तक गया, जगह जगह पे गया, जो इश्यूज थे हम लोग ने एक ड्राफ्ट हम लोग ने लेके गवर्नमेंट को दिया, और गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड लास्ट ईयर द ईयर ऑफ एजुकेशन ऑल्सो। और उसी प्रकार कुछ कुछ हम लोगों ने मुद्दा हायर एजुकेशन भी बताया, जो लेक्चरर्स का कामियां है, टीचर्स का, स्कूल्स में टीचर कामियां है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हम लोग देख रहे हैं कि उसमें भी काफी गवर्नमेंट का भी काम शुरू हो चुका है, उसका भी पहल हो चुका है। तो आई थिंक इट विल टेक टाइम, बट गवर्नमेंट हैज टू उसको टेक टाइम बोल के उसको हमेशा डिलींग नहीं करना, एक टाइम बाउंड में जो भी टाइम बाउंड में करना चाहिए। बिल्कुल टाइम बाउंड सॉल्यूशन। तमे ग्यादी जी, फाइनल कमेंट्स, बिकॉज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। नाउ आपने सुना तोबम दाई जी ने कहा कि ये इतना जल्दी सब कुछ ठीक नहीं होगा, हमको पेशेंस हमको रहना चाहिए। लेकिन मेरा प्रश्न ये है ग्यादी जी, अभी भारत स्वाधीन होने का, इंडिपेंडेंस होने का 75 ईयर्स हो गया है, अभी विजयनगर को एक रास्ता जा रहा है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि एक दो सप्ताह पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद गया है, वो गाड़ी लेके बिल्कुल एक सर्टेन स्ट्रेचेस गाड़ी में गया, फिर पैदल जाना पड़ा। तो ये सिचुएशन इतना टाइम क्यों लगा? ये बीजेपी, कांग्रेस, एनपीपी का बात नहीं है, ये सरकार का बात है, गवर्नमेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट। ये तो बिल्कुल, देखिए, ये आपका जैसे जो एजेंसी है उसका ऊपर डिपेंड करता है ना। तो गवर्नमेंट ने उसको नजर रखना चाहिए, कब उसको इन टाइम में कंप्लीट करना नहीं करना वो गवर्नमेंट का ऊपर डिपेंड करता है। और एजुकेशन जो एजेंसी है उसके ऊपर में वो निगरानी करना चाहिए, उसको बोलना है कि टाइम में ख़त्म करना है काम को। एक काम को लेके आप इतना साल रहेगा तो ये कैसे आपका ये डेवलपमेंट होगा? चीज़ तो ये है ना। Absolutely, absolutely. Moyur Bora, your final comments. What do you think as someone who is watching Arunachal Pradesh from outside? See, my point would be very clear. Mr. Bibek has been telling about the government cannot react to all the incidents or whatever procession or journey or march takes place. I don't want a reactive government. In a democracy, I want a responsive government. And when do I expect the response? When the person has been marching for more than 2-3 days. I think he has started his journey on 15th April and raised some very basic issue which has been faced by all the people all throughout the country in general and Arunachal Pradesh in particular. And when he was highlighting that issue, making it very clear that he doesn't have political ambition, he has got full trust in Chief Minister, in such a scenario, when the government is taking so much of time, tomorrow if somebody alleges some wrongdoing at the highest level, then I feel the government will not come to him at all. Absolutely. That's the main point. I'm totally running out of time. Final comments, last word to Nabam Vivek. The ball is in the court of your government. So your government, people are expecting your government to react and respond fast. Once again, I'm affirming that the Pema Khandu-led government is very affirmative on the issue, and as you Wasbir have said in the breaking news that already the HCM has taken note, and
the things will come into a good conclusion. And regarding the other sectors, the state government has recently, in education sector, 1,000 crore has been allotted for the infrastructure development of the education scenario in the state. And recently 65 posts of assistant professors has been created and advertised has been given. So that way I don't know about other, I won't blame that वो गवर्नमेंट क्या है क्या ये गवर्नमेंट क्या है वो नहीं, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट लेड बाय श्री पेमा खांडू जी एज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ये विजयनगर का रास्ता भी उसी का इनिशिएटिव से अभी पहुंचा है और करप्शन का और हर ताली भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी जहां रास्ता नहीं पहुंचा है वहां भी इस साल पहुंचने का उसने वादा किया है और विजयनगर रास्ता अभी बाय रोड पहुंचने लायक हो गया बिकॉज ऑफ द एक्टिव वर्क ऑफ our honorable chief minister और हर सेक्टर में प्रोएक्टिवली काम कर रहा है with a responsible attitude and responsible government. I am completely out of time. I want to show full frame before, and even as I am talking, I want to show full frame of Sol Dodum running, that running visual. Well, he's running, single man running with a bamboo pole on his hand. That is the picture I want on the screen. Now, what is the moral of this story? The moral of this story is that a single individual, not representing any party, any organization, has created a star in the entire Arunachal Pradesh, and I want that running picture, please. You know, the soul, that sole single individual has created a star. He has moved and shaped the political class as well as the civil society, as well as the media, as well as the social media, in not only in Arunachal Pradesh but the entire region and maybe elsewhere, with his single resolve to draw the attention of the government. What is he demanding? He is demanding clean drinking water for the 25,000 residents of Seppa. And as Tobam Dai, himself a very, very responsible student leader, the General Secretary of the All Arunachal Pradesh Students' Union, as he said, that he has also been inspired by this non-violent democratic form of protest, if we can call it that, that has been led by Sol Dodum. We are also glad to hear that the Chief Minister of Arunachal Pradesh is aware of the demands raised by, issues raised by Sol Dodum, and that he is likely to meet him soon. We'll keep a close watch on the story. Thanks, panelists, for joining the show and the viewers for watching the program. Good night and goodbye.